इस वक्त भारत का कोविड-19 का जो क्राइसिस है वो दुनिया में किसी से छुपा हुआ नहीं। दुनिया में भारतीय सिविलाइजेशन से तल्लुक़ रखने वाले लोग जहाँ कहीं भी बसते हैं वो इस वक्त बहुत गमगीन भी हैं और इसके साथ साथ बहुत कंसर्न भी हैं। इसी कंसर्न रवैया की वजह से यूएसए में, कनाडा में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं कि भारत के इस कोविड-19 की सेकंड वेव के क्राइसिस को हैंडल करने के लिए जितनी मदद हो सके वो भेजी जाए। एक ऐसी ही कोशिश न्यू जर्सी अमेरिका से हो रही है जिसके रूह रवां डॉक्टर राजीव सिंधवानी और मनदीप सिकंद हैं। हमने इनसे रब्ता किया और उन्होंने हमें अपने फंड रेज का लिंक भेजा। हम वो लिंक आपको इस वीडियो के साथ दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ मनदीप सिकंद जी के साथ भी मैं बातचीत करूंगा और मेरी बातचीत होगी सेनेटर वेणुगोपाल से। आप हमारा बिला तकल्लुफ़ का ये ख़ुसूसी शो ख़ास तौर पर देखिए और सिर्फ आज इस शो को देखिए ही नहीं बल्कि मेरी अपील पर इस फंड रेज में भरपूर तरीके से हिस्सा लीजिए। मैं बार बार कहूँगा, याद दिलाऊँगा इस अपने शो के दौरान कि एक लिंक हम यहाँ पर भी देंगे स्क्रीन पे भी और अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी देंगे। वेणुगोपाल सिविक एसोसिएशन से जुड़ा हुआ वो जो लिंक है जिसके ज़रिए आप क्लिक करेंगे तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए मदद कर सकते हैं और आपको मदद करना चाहिए। आज मेरी आपसे अपील है कि आप ये मदद हर सूरत करें। थोड़ी ही देर में मेरे साथ जुड़े होंगे सेनेटर वेणुगोपाल। आई एम जॉइंड विद सेनेटर वेणुगोपाल। Thank you, Senator, for joining me, and thank you for supporting the community initiative during this dire need of India. How hopeful are you in terms of achieving community's 4 million fundraise target in order to supply 10,000 units of oxygen concentrators? I'm very hopeful. First, it's wonderful to be with you, so thank you. To hear. Every Indian American and here in the United States and here in New Jersey, I think has a moral obligation. We have family, we have loved ones. Up until recently, I traveled every year to India to visit my grandparents until they both passed. Up until about 2 years ago, every year like clockwork. And so many of us, even though we are born here and raised here, or maybe born in India and living here, we have a dedication to help our brothers and sisters overseas. So we're hopeful, and even if people have trouble affording even a small monetary donation, and we're working hard to try to get the oxygen meters and everything else overseas. So India has started receiving shipments from the US aid from today. To what extent the US government plans to assist India during this crisis? I can tell you here in New Jersey, I was just on the phone with the First Lady, Tammy Murphy, and I spoke to Governor Murphy yesterday. I know the governor spoke to the Indian ambassador to the U.S. And so we're engaged here in New Jersey, and I think we're going to do everything we can, working with all of our hospitals to get any excess oxygen meters, N95 masks, other necessary things, as well as monetary donations. We're raising money every day. Through my foundation and folks led by Mike C. Cand and other people down here in New Jersey are making a big effort to make monetary donations to help those people overseas, their families, medical bills, hospital bills, etc. So it looks like everything coming out at the federal level from President Biden and Vice President Harris is similar. And I think everybody sees how important and how tragic this really is. President Biden said, India was there for us. India helped the people of America in their hour of need, and the U.S. will provide full support in providing emergency assistance and resources in India's fight against COVID-19. So to what extent India should expect from Biden administration? I would hope that they expect exactly what the president said, that it's not just India's been for the United States, but there are millions of Indian Americans living here who are very worried about what's happening overseas, and that should be of great concern to the Biden administration, which it is. So my understanding is they are working every medical facility, all of the state health stockpiles in all 50 states, Department of Health,
to really make sure the proper donations are going to go overseas and get to the right places. So the Prime Minister Modi said earlier this week that his discussion with President Joe Biden also underscored the importance of smooth and efficient supply chains of vaccine raw materials and medicines. India-US health care partnership can address the global challenge of COVID-19. So how do you see both leaders' willingness to cooperate with each other on ground? So this isn't politics or views. This is making sure we keep people alive and help people. So I think that's an important message from the Prime Minister, that we have to make sure that these oxygen meters and other monetary donations are getting to the right people, getting to the right communities, North and South India, making sure it gets to the right villages, right urban areas, etc. So I think that's an important conversation. I've got so many people who have reached out wanting to make donations, and they're like, how do we do it? And they're all concerned about making sure, because, you're going tens of thousands of miles away and transferring any donation. You just want to make sure it gets to the right place, gets to the right hospital in need, gets to the right community. And I think that's part of a lot of their targeted communication. And unfortunately, it takes time. And I know we don't have a lot of time right now. So apart from this initiative by Venugopal Civic Association, what else would you do with the help of community in terms of helping India? Well, we're working right now at the state level through the governor and first lady to coordinate all of the hospitals in New Jersey to make donations of their oxygen meters, their N95 masks, any other donations they can provide so it gets to the right place. I believe that's tens of thousands of pieces of equipment that can help a lot of people in India. So any precise message would you like to convey to community for this fundraise and to handle this crisis? Please donate. Your donation is tax deductible if you're a U.S. citizen and pay taxes in the U.S. It's tax deductible, and we are working 100% through these partner organizations, through the embassy, through the government to make sure that this help, that your donation is going to go to the right place and it's going to go help somebody in need. We really appreciate your involvement in this very important initiative. Thank you so much, and thank you for giving me some time. थैंक यू सर। कम्युनिटी भरपूर कोशिश कर रही है कि इस वक्त भारत में जो शदीद क्राइसिस है उस पर काबू पाने के लिए अमेरिका से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी भेजें और मैक्सिमम मदद भेजें। इसी सिलसिले में $4 मिलियन की एक फंड रेज का टारगेट मुकर्रर किया डॉक्टर राजीव सिंधवानी और मनदीप सेकन जी ने, और ये जो इनिशिएटिव है उन्होंने सेनेटर वेणुगोपाल के साथ एसोसिएट करके किया है। सेनेटर वेणुगोपाल डेमोक्रेट्स पार्टी की तरफ से इस बात को बहुत आगे फैला रहे हैं, इसका चर्चा कर रहे हैं। अभी मैंने उनका इंटरव्यू भी किया, और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त वीडियो लिंक पर जुड़े हुए हैं मनदीप सेकन जी। सत श्री अकाल, नमस्कार वीर जी। हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। आप खुद मेडिकल शोबे से भी तल्लुक़ रखते हैं और इंसानियत का दर्द भी है। भारत आपका, मेरा, हम सब की सिविलाइजेशन का देश है, तो हमें तकलीफ़ होती है कि जब अपने ही देश में इतना बड़ा क्राइसिस आए। तो इस पूरे इनिशिएटिव का मकसद क्या है? So मकसद is very simple. I mean, right now, without thinking too much, whatever we can do to provide whatever little relief we can provide as a community, that is the effort. कि जो इस समय लोग वहाँ पे जो हम सब यहाँ पे न्यूज़ मीडिया में देख रहे हैं कि उधर तराही मची हुई है इस समय, लोगों के पास बेसिक, जो मुझे लगता है कि इतने लोग वहाँ पे सिम्प्टोमेटिक डिजीज से नहीं मर रहे हैं जितने लैक ऑफ उनको चीजें नहीं मिल रही हैं, बेसिक ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जो मतलब रूडिमेंट्री चीजें होती हैं जो आम अस्पतालों में वैसी मिलती हैं। यहाँ पे अमेरिका में आप चले जाओ तो जानवरों के अस्पताल में वो सारे इक्विपमेंट हैं हमारे। सो इट्स एक तो स्केल बहुत बड़ा है, और सो द प्राइमरी जो हमारा गोल ये है कि हम जितनी भी ऑक्सीजन इक्विपमेंट, रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट कम्युनिटी एफर्ट से इंडिया भेज सकें। नंबर 1 तो वो है कि वो एकदम इफेक्ट आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि सारों के इस समय
सबकी रूह आत्मा तो अपने हिंदुस्तान में अटकी हुई है जो यहाँ पे भी बैठे हैं, तो वो एवरीबडी वांट्स टू डू समथिंग। सेकंड गोल इज कि पॉलिटिकल लेवल पे हम अपने जो लोकल लीडर्स हैं उनको एक्टिवेट करें, उनको मोटिवेट करें कि दे कैन टेक दो स्टेप्स जो हमारी कैपेबिलिटी से बाहर हैं एंड एक्चुअली विल मेक एन एफर्ट, you know, like opening up state stockpiles which will really make a dent in this. अगर वो state stockpiles खोल देते हैं, जैसे सेनेटर गोपाल कोशिश कर रहे हैं, उधर डॉक्टर सिंधवानी कोशिश कर रहे हैं न्यूयॉर्क स्टेट में, तो वहां से जो हमको इक्विपमेंट वगैरह मिल सकता है वो एक्चुअली एक इस चीज को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करेगा। सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू अकम्प्लिश। जी मनदीप जी, आपने सही कहा कि ये बहुत ही बड़े स्केल का क्राइसिस है। इतना ज़्यादा कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था कि भारत सेकंड वेव में इतनी बुरी तरह हिट होगा। अब जब हिट हो ही गया है तो मैं आपको बताऊं, हमारे इधर ओंटारियो में जहां मैं रहता हूं, हमारे प्रोविंस में इस वक्त कोई 3000 और 4000 के करीब डेली के केसेस आते हैं। तो हमारे हॉस्पिटल्स ने हाथ उठा लिए हैं और कह दिया है कि फॉर गॉड सेक हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। और मैं सोचता हूँ भारत जहाँ पे रिपोर्टेड केस 3.5-4 लाख दिन के हैं और लोग कहते हैं कि अनरिपोर्टेड अगर मिला दिए जाएं तो शायद डबल हो जाएं, तो वहाँ पर भी सूरत हाल बड़ी ही गंभीर है। अब तक आपकी इस फंड रेज की कोशिशों से अब तक क्या हुआ? अभी तो सिर्फ 3 दिन से ये काम शुरू हुआ है। मुझे ये पता चला कि एक कंसाइनमेंट आप दोस्तों ने भेज भी दी है। हाँ जी, हमने वो तो एक मिरेकल हुआ कि एक ही दिन के अंदर, 1.5 दिन के अंदर वो सारा कुछ अरेंज हुआ। एंड मोस्टली कुछ हमें जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे थोड़ी सपोर्ट मिली, बट मोस्टली इट वाज एन इंडिविजुअल लेवल पे एफर्ट था। एंड वो ये था कि एक बारी तो कुछ किया जाए, उसके बाद देखेंगे कि कहाँ से फंडिंग आएगी, क्या होगा। तो हमने अभी तक 130 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स इंडिया भेज दिए हैं एंड हमारी दूसरी शिपमेंट तैयार हो रही है। हो सकता है अगर सब कुछ ठीक गया, भगवान खुदा अल्लाह वाहिगुरु ने चाहा तो हम उसको 1-2 दिन के अंदर अंदर वो भी 200-300 कॉन्सेंट्रेटर्स हम वहां भेज देंगे। और हमें अब क्या हो रहा है कि इस एक्शन से, जो ये छोटा जो एक्शन हमने पहले लिया था, उससे लोग मोटिवेटेड हो गए कि हम कुछ कर सकते हैं, तो हमें सरकार की वेट नहीं करनी है। सो इंडिविजुअल लेवल पे बहुत मोटिवेशन है इस समय। मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे दिहाड़ी में कितने फोन आ रहे हैं लोगों के जो हमने एफर्ट किया है उसको रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं। अब ये हाल हो गया है कि मार्केट में चीजें नहीं मिल रही हैं क्योंकि इतने लोग भेज रहे हैं वहां पे। सो मेरे एस्टिमेट से इस समय हिंदुस्तान में इंडिविजुअल एफर्ट से ही कम से कम 5-6 हजार ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स या तो चले गए हैं या जा रहे हैं इन दैट प्रोसेस। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम इंडिविजुअल एफर्ट, नॉट टॉकिंग अबाउट कि जो स्टेट या एंड हमारे अलावा और भी लोग जो इसमें इन्वॉल्व हो गए। ये बहुत बड़ी बात है और अच्छी खबर है कि इस ज़रूरत की घड़ी में आप जैसे दोस्त अमेरिका में बैठे हुए अपने एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि अपनी धरती माँ की और वहाँ के लोगों की सेवा की जाए। अभी आज ही अमेरिका के 2 सरकारी जहाज़ 2 बड़ी शिपमेंट लेकर वहाँ पहुँचे हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल लेवल पे भी काम हो रहा है। तो अब तक जो आपका टारगेट है $4 मिलियन का, वो आपको लगता है कि आइंदा आने वाले कुछ वीक्स में आप उसको अचीव कर लेंगे? अचीव भी कर सकते हैं, हम एक्सीड भी कर सकते हैं। टारगेट सिर्फ पैसों में ही नहीं गिना जा सकता। इट इज जो हमें एड सरकार की तरफ से जो हम एफर्ट्स, अब ये जो कुछ जा भी रहा है, ये भी हमारे कलेक्टिव एफर्ट, बहुत प्रेशर डाला गया है स्टेट सेनेटर्स पे। मैंने भी स्टेट सेनेटर्स को लिखा था और सेनेटर गोपाल हमारे जो यंग राइजिंग स्टार हैं यहाँ पे न्यू जर्सी में, वो
जेन्युइनली उनका जो ही हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, वो चाहे इंडियन कम्युनिटी हो कोई भी कम्युनिटी हो, वो सब कुछ छोड़ के सबसे पहले सबको हेल्प करने के लिए आते हैं। तो उन्होंने बड़ा इस बिहाइंड द सीन जो फेडरल लेवल के सेनेटर्स वगैरह हैं उन पे भी हमने काफी उनके थ्रू प्रेशर डाला है। सो तभी ये चीजें ये रिस्ट्रिक्शंस वगैरह उठी हैं, ये कोई ऐसे ही नहीं उठी हैं, इसके पीछे लॉट ऑफ वर्क हैज हैपेंड। सो कम्युनिटी वर्क हैज हैपेंड, अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम कम्युनिटी हैव अर्ज्ड देयर लोकल सेनेटर्स, कांग्रेसमैन कि इंडिया की इस समय हेल्प की जाए। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो अब ये हम इवन स्टेट लेवल पे जो कर रहे हैं, अगर हमें अब अस्पतालों से कईयों से हमें फोन आ रहे हैं, वो हमें सामान दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। सो आने वाले दिनों में इट्स पॉसिबिलिटी है कि हम इस टारगेट को भी एक्सीड कर सकते हैं। सो आई वुडंट बी सरप्राइज। हमारी सिर्फ अमेरिकन इंडियन कम्युनिटी जो है उसके दिल में ही जेनरोसिटी नहीं है। अमेरिका जो आम आदमी है, यहाँ का आम आदमी बहुत जेनरस है, बहुत काइंड है। एंड ऐसे मौके पे मैं हर से सुन रहा हूँ कि एवरीबडी, और इंडिया की वैसे भी गुडविल अच्छी है अमेरिका में, और लोग एक हमारी कम्युनिटी के करके कह लो कि हमारी कम्युनिटी में इतने डॉक्टर, इंजीनियर्स, टेक्नोक्रेट्स हैं जिन्होंने अमेरिका में काफी कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं। तो अमेरिका की काफी अच्छी, इंडिया की काफी अच्छी गुडविल है अमेरिका में, और उस बेसिस पे अमेरिकन आम जनता भी बहुत सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जी, आपने कहा कि बहुत ही अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग हेल्प फ्रॉम अमेरिकन्स एज वेल एज इंडो अमेरिकन कम्युनिटी। आपने ये जो फंड रेज का एक सिलसिला शुरू किया है, मैं इसका अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ, rallypay.com का, और वो स्क्रीन पे भी अपीयर हो रहा है, ताकि जो भी साथी चाहे वो दुनिया में कहीं भी बसते हों, चाहे अमेरिका में बसते हों, चाहे कनाडा में, चाहे यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, वो हमारी इस बात को सुने, इस लिंक को क्लिक करें जो हमारी डिस्क्रिप्शन पे है, और सीधा जाके अपना कंट्रीब्यूशन करें। ये सिर्फ अमेरिकन इंडियंस के लिए नहीं, बल्कि ये दुनिया भर के इंसानों का फ़र्ज़ है कि इस वक्त की मुश्किल घड़ी में साथ दिया जाए भारत का। और जबकि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने बड़े ही सिंपल शब्दों में कहा, उन्होंने कहा कि जब हमें ज़रूरत थी तो भारत हमारे लिए खड़ा था पेंडेमिक के शुरू के दिनों में, अब हम भारत के साथ हैं। तो मनदीप साहब, आखिर में ये बताइए, प्रेसिडेंट जो बाइडन के इन लफ्ज़ों को आप कैसे देखते हैं? ये दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि देखें, जब अमेरिका पे प्रॉब्लम आई थी तो क्या कहते हैं, जो इंडिया कर सकता था, इंडिया वाज अमंग्स द फर्स्ट कंट्रीज टू ऑफर हेल्प। एंड ये इंडिया और अमेरिका का ही नहीं है, ये एक इंसानियत का बेसिस है कि जब भी हम जैसे जैसे दुनिया खुल रही है, लोगों के दिमाग भी खुल रहे हैं कि हम सब एक हैं। तो जब किसी पे भी, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड। अब ये तो है नहीं कि एक प्रॉब्लम कहीं पे रहेगी तो वो वहीं पे लिमिटेड हो जाएगी। अगर अमेरिका सबको इंजेक्शन दे के वैक्सीनेट कर भी लेता है, अगर इंडिया में प्रॉब्लम रहेगी तो अमेरिका भी सेफ नहीं। सो वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर टू, इंडिया ही नहीं है, ये कल को अफ्रीका में हो जाए, किसी कंट्री में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, कहीं पे भी जो ये प्रॉब्लम्स हैं, वी हैव टू टैकल देम जॉइंटली। And it's a one world. जैसे when we have become a very small community, अब छोटा सी एक कम्युनिटी, पहले तो एक गांव से दूसरे गांव में जाने को लोगों को महीने लग जाते थे, अब तो आप 4 घंटे में, 12 घंटे की फ्लाइट में अमेरिका आ जाते हैं। तो ये दिस इज a given, ये तो करना ही, ये इंसानियत का फर्ज है। एंड एक अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी इकानमी है, उसका ये एक किस्म से रिस्पॉन्सिबिलिटी है to take this leadership and help everybody who's struggling with this. And you are doing a great job. I must add कि जो आप कर रहे हैं, this is a fantastic thing, क्योंकि ये awareness जो है ये बहुत जरूरी है। जितनी आप awareness फैला रहे हैं इस medium के through, this is a godsend, good work you are doing, and I thank you for that.
नो थैंक यू वेरी मच। बहुत आखिर में हमारे व्यूअर्स को मनदीप जी एक बार फिर बताएं कि मैं उनको बता तो रहा हूं कि rallypay.com का लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, स्क्रीन पे भी साथ साथ चला रहे हैं, लेकिन एक बार फिर बताइए कि जो आपका साथ देना चाहे, दुनिया में कहीं बस रहा हो, वो कैसे आसान तरीके से इस फंड रेज में हिस्सा ले सकता है। उसका लिंक है, फेसबुक पे भी लिंक डाला हुआ है, ट्विटर पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी लिंक है। विन गोपाल सिविक एसोसिएशन, अगर आप गूगल भी कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। विन गोपाल सिविक एसोसिएशन के बहुत अच्छा काम करते हैं, हमेशा ही करते आ रहे हैं, कई सालों से करते आ रहे हैं। अब इन्होंने इंडियन ये जो ये रिलीफ है, इसको हम इसके थ्रू एज एन 501(c) जो अमेरिका वाले हैं उनको इससे टैक्स शेल्टर भी है। सो ये तो इस समय जिसके पास जो दे सकते हैं, सोचने की बात नहीं है ये कि यू जस्ट गिव, खुले दिल से दो और लोगों की जानें बचाओ। एंड इससे बड़ा नेक काम कोई है ही नहीं जिंदगी। और कुछ तो जाएगा नहीं साथ हमारे, जो हम लाए हैं सब यहीं पे रह जाना है, यही कर्म ही हमारे साथ जाने। सो लेट्स ऑल गेट टुगेदर एंड डू दिस। थैंक यू वेरी मच मनदीप भाई, हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। आपसे आने वाले दिनों में भी बातचीत करते रहेंगे। आप जो इंसानियत की सेवा के लिए अपना काम कर रहे हैं, हम उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। बातचीत सुन रहे थे आप मनदीप सेकंद जी की। उन्होंने बहुत ही वाज़ेह अंदाज में कहा कि हमारा फ़र्ज़ है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई मसला हो, हमें मदद के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में फासले इतने कम हो गए हैं। इन्हीं फासलों की कमी की वजह से वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है, और अगर पूरी दुनिया में फैल रहा है तो हम पूरी दुनिया वालों का फ़र्ज़ है कि हम आगे बढ़ चढ़ कर आएँ और इसका मुकाबला करें। बातचीत आप सुन रहे थे सेनेटर विन गोपाल की, इसके साथ साथ मनदीप सेकंद की। और मैं बार बार अपील कर रहा हूं कि आज के इस शो को सिर्फ शो के तौर पर ना देखिए, बल्कि इस पर अमल करते हुए जो हम आपको लिंक यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं, वही लिंक आपको इस वीडियो में भी नज़र आएगा, इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी। आप उसको क्लिक कीजिए और भारत में जो इस वक्त शदीद क्राइसिस चल रहा है उसका आप हल निकालने के लिए अपना योगदान कीजिए और उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन कीजिए। आज का खुसूसी शो मेरे साथ देखने का बहुत शुक्रिया। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.